Hello everyone. Today's topic of discussion is female reproductive system. In this video, we are going to cover introduction, anatomy of female reproductive system, external genitals and functions of female reproductive system. Female reproductive system is made up of internal and external sex organs. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन से मिलके बना होता है और जो इसका फंक्शन होता है वो रिप्रोड्यूस करवाने का होता है न्यू ऑफस्प्रिंग्स को. Next point is in humans the female reproductive system is immature at birth. It means जो female reproductive system होता है वो immature होता है. Immature in the sense कि वो इतना capable नहीं होता कि वो gametes का production करवा सके. But after puberty it attains maturity and it will be able to produce gametes after that. So it can carry a fetus in full term in the uterus. तो आफ्टर प्यूबर्टी इसकी फुल मैच्योरिटी का डेवलपमेंट हो जाता है और फिर यूट्रस इतना कैपेबल हो जाता है कि वो एक फीटस को कैरी कर सके थ्रू आउट द गेस्टेशन. So it was all about the introduction of female reproductive system. Now if we talk about the anatomy, so जो इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से parts होते हैं female reproductive system के with the help of diagram and उसके सारे particular जितने भी parts involve हैं anatomy में उसके क्या क्या function होते हैं. So first, female reproductive system consists of pair of ovaries and the fallopian tubes. तो pair होता है दो ovaries दो fallopian tubes present होती हैं female reproductive system में. सिंगल यूट्रस होता है, सिंगल वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटल स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट इज एग सेल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. एग सेल का जो डेवलपमेंट होता है जो प्रोड्यूस होते हैं एग सेल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ओवरीज में होते हैं और फैलोपियन ट्यूब के पाथ को ट्रेवल करते हुए वो यूट्रस तक पहुंच जाते हैं. और ये सबको पता है कि यूट्रस में क्या होता है, फीटस का पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूट्रस में ही होता है. तो फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए जो एग सेल्स थे वो यूट्रस तक पहुंचे और फिर द यूट्रस इज द साइट फॉर द ग्रोथ एंड ऑफ द एम्ब्रियो फीटस. तो यूट्रस कौन सी साइट हुई है जहाँ पे फीटस का पूरा डेवलपमेंट होता है, फुल ग्रोथ उसकी होती है और यूट्रस ही वो पार्ट होता है जो कि इम्प्लांटेशन होता है जहाँ पे इट इज़ द साइट फॉर द इम्प्लांटेशन. तो जितना भी डेवलपमेंट होता है ग्रोथ होती है फीटस की वो इन द यूट्रस होती है. सो अभी ये एनाटमी में हमने देखा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि कौन कौन से पार्ट्स थे और उनकी लोकेशन. So anatomy of female reproductive system. In structure, the center portion of the system is known as uterus. It contains three layers: innermost layer, middle layer and the outermost layer. The outer layer of the uterus is known as perimetrium. Middle layer is known as myometrium. Myo means middle beach wala. So in middle layer is known as myometrium and the innermost layer is known as endometrium. These are the layers of uterus. The upper part of the uterus is known as fundus and the side parts of this system are the fallopian tubes and ovary is connected with the fallopian tube in the finger like projections. Fallopian tube is the site where the fertilization takes place. Ovary is responsible to produce eggs. So production of egg takes place
in ovaries, and fallopian tubes are responsible for the fertilization. Next, the upper portion of uterus was fundus, and the lower portion of uterus is known as cervix, and the opening of this is known as vagina. So these are the basic parts of female reproductive system. If we talk about the hormones which are produced by this system are estrogen and progesterone. Next, this system is responsible to produce eggs. Next, it supports and protect developing embryo. So it is talking about the uterus, which is responsible for support and protection of developing embryo. So overall, this system give birth to new baby. Next is the major organs of the system. So we have discussed these organs like cervix, vagina, ovaries, uterine tubes, and the uterus. So the first part are ovaries. As I already told you that ovaries are pair in number, and the structure of ovaries are oval. If we talk about the measurement of ovaries, these are 4 centimeter in long on either side of uterus in the pelvic cavity. Next is within an ovary are several hundred thousand primary follicles which are present at birth. So ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि ओवरीज में ओवरऑल मैंने बताया था कि एग का प्रोडक्शन जो होता है वो ओवरीज के अंदर होता है. तो एग प्रोड्यूस कैसे हुआ ये प्रोसेस यहाँ पे इसने बताई है. कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है. तो ओवरीज में क्या प्रेजेंट होता है. सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. प्राइमरी फॉलिकल्स अब क्या होता है. तो प्राइमरी फॉलिकल्स दीज आर द क्लस्टर ऑफ सेल्स. क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं. एक सेल्स का गुच्छा टाइप होता है जो कि प्रेजेंट होता है और उसको नाम दिया गया कि वो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं हमारे. फर्दर जब इन सेल्स का डिवीजन होता है तो कुछ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं इन नंबर, एंड एक सेल ऐसा होता है जो कि इन साइज इंक्रीज होता है. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि नंबर में इंक्रीज होते हैं और एक सेल इसमें ऐसा होता है जो कि साइज में इंक्रीज होता है. जो सेल साइज में इंक्रीज होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज हुए थे वो साइड में प्रेजेंट होते हैं. जो हमारा सेल बीच में प्रेजेंट था जिसको मैंने बताया कि उसका साइज में इंक्रीज हुआ था नॉट इन नंबर, तो वो फर्दर क्या बनाता है वो सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट होता है वहाँ पे. और जब ये स्टेज एक पहुँचती है कि वो जो सेंटर में सेल था उसने सेकेंडरी oocyte बना दिया और सराउंडिंग सेल्स जो थे वो नंबर में इंक्रीज होते गए, तो वो क्या एक बनाता है उसको हम बोलते हैं कि उसने ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करवा दिया. फर्दर जब ये इसमें क्या होता है कि जब स्पर्म के साथ में कांटेक्ट में आता है तो ही फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है फैलोपियन ट्यूब में जाके. बट जो हमें बात यहाँ पे समझनी है वो ये है कि जो ओवम है हमारा वो कहाँ से बना, मीन्स उसकी प्रोसेसिंग क्या थी, वो कैसे कैसे बना. तो जो ओवम का प्रोडक्शन होता है उसकी जो स्टार्टिंग स्टेज होती है वो ये पूरा प्रोसेस ओवरी में ही हो रहा है, दोनों ओवरीज में हो रहा है. तो प्राइमरी फॉलिकल से स्टार्ट होता है ये पूरा प्रोसेस. प्राइमरी फॉलिकल्स दीज आर द क्लस्टर ऑफ सेल्स जो कि फर्दर इसका जब डेवलपमेंट होता रहता है डिवीजन होता रहता है सेल्स का तो वो क्या बनाते हैं वो ग्राफियन फॉलिकल बना देते हैं.
तो वही चीज़ इसने यहाँ पे बताई है, इसलिए मैंने आपको एक अभी ओवरऑल एक आइडिया दिया है। वन बाय वन जब हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो ये आपको और समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो सेकंड पॉइंट इसने यहाँ पे जैसे बताया, विद इन एन ओवरी आर सेवरल थाउजेंड हंड्रेड प्राइमरी फॉलिकल्स विच आर प्रेजेंट एट बर्थ। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं, और वो फर्दर धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, उनका डिवीजन होता रहता है। तो ईच प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल कंटेन्स एन oocyte, अ पोटेंशियल ओवम और दी एग सेल। oocyte इसमें क्या बताया कि क्या होता है, वो एक पोटेंशियल ओवम या फिर एग सेल को oocyte बोलते हैं। सराउंडिंग द oocyte आर दी फॉलिकुलर सेल्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो सराउंडिंग में सेल्स प्रेजेंट होते हैं और एक सेंटर में सेल प्रेजेंट होता है, सराउंडिंग सेल्स को नाम दिया गया फॉलिकुलर सेल्स, विच सिक्रेट ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन अभी बताया था लास्ट स्लाइड में कि क्या होता है, ये वो हार्मोन होता है that is produced by the female reproductive system. Next, a mature follicle may also be called Graafian follicle. तो जब ये फॉलिकुलर सेल्स की मैच्योरिटी अटेन ये करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फर्दर, कि वो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन उसने कर दिया। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करवाते हैं, एंड द हार्मोन LH। LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कॉजेज ओव्यूलेशन। जब ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योरिटी अटेन हो जाती है तो एट दैट टाइम पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन का रिलीज करवाते हैं। उस हार्मोन को नाम दिया गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज रप्चर ऑफ द मैच्योर फॉलिकल्स विद रिलीज ऑफ द ओवम। अब इसने ओव्यूलेशन बताया कि ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, तो ये एक वो प्रोसेस है जिसमें कि जो सराउंडिंग सेल्स थे, जिसको हम बोल रहे थे कि ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, उनका रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। और जो रिलीज करते हैं ये सेल्स, उसको क्या नाम दिया गया कि वो ओवम रिलीज करवा रहा है। जो सेंटर में प्रेजेंट था सेल वो रिलीज हो जाता है अब जब सराउंडिंग सेल्स का रप्चर होना स्टार्ट होता है। तो एट दिस टाइम अदर डेवलपिंग फॉलिकल बिगिन टू डिटियोरेट। दीज आर कॉल्ड आर्टरेटिक follicles and have no further purpose। इसने बताया कि सेम टाइम पे क्या होता है, अदर डेवलपिंग फॉलिकल्स भी होते हैं जो कि डिटियोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उस स्टेज को क्या नाम दिया गया, आर्टरेटिक फॉलिकल्स बोला जाता है। उनका कुछ फर्दर यूज नहीं होता क्योंकि वो डिटियोरेट हो गए हैं, रप्चर वो हो चुके हैं, तो उनका अब कुछ फर्दर यूज नहीं है, फर्दर उनका कुछ पर्पस नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट दी ओवरी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फैलोपियन ट्यूब। ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है सिस्टम में, और ये वो साइट होती है जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ यहाँ पे, जब ओवरीज में एग का डेवलपमेंट होता है तो फैलोपियन ट्यूब का काम ये रहता है कि उस ओवम को वो ले लेती हैं ओवरी से, और फिर स्पर्म के साथ में जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो फैलोपियन ट्यूब्स में ही जाके होता है। तो दीज आर दी टू इन नंबर एंड ऑल्सो नोन एज यूटराइन ट्यूब और ओविडक्ट्स। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 4 इंचेस लॉन्ग होती हैं, ये मीन्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट इज द लेटरल एंड ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब एनक्लोजेज एन ओवरी। तो लेटरल एंड की ये बात कर रहा है कि जो एंडिंग होती है फैलोपियन ट्यूब की वो एनक्लोज करती है किससे, ओवरी से। आपने स्ट्रक्चर में भी देखा कि एंड में ओवरीज के जहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था तो उसी के साथ में ओवरीज का अटैचमेंट होता है एट बोथ द साइड्स, एंड द मीडियल एंड ओपन्स इनटू द यूटरस। ये तो इसने बताया कि जो लेटरल एंड था वो ओवरी से एनक्लोज होता है, और जो बीच वाला जो पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब्स का वो किससे ओपन होता है, ओपनिंग इसकी कहाँ से हुई, यूटरस तक होती है। The end of the tube that encloses the ovary has fimbriae,
that is finger like projections that create current in the fluid surrounding to pull surrounding the ovary to pull the ovum into the fallopian tube. तो इसने यहाँ पे क्या बताया, स्ट्रक्चर में जो देखा था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एक स्ट्रक्चर मेंशन था, तो वो क्या होती हैं, वो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें, और जब ये ओवम का डेवलपमेंट हो जाता है ओवरीज में, तो ये क्या करता है, ये लिक्विड क्या करता है, ये जो फ्लूइड है ये करंट जनरेट करवाता है, और इस करंट की वजह से जितने भी ओवम प्रोड्यूस हुए थे ओवरी में, वो फैलोपियन ट्यूब उसको पुल करने का काम कर देती हैं। ये क्यों हुआ है, ये उस फ्लूइड की वजह से हुआ है जिसने कि करंट जनरेट करवाया था। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। ये बात मैंने अभी जैसे कि डिस्कस की थी कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। फिर इसने बताया कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, इफ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम डाइज विद इन 24 to 48 आवर्स। इस टाइम के अंदर ओवम अपने आप ही मर जाता है, एंड डिसइंटीग्रेट्स ईदर इन द ट्यूब और इन द यूट्रस, या तो ट्यूब में ही वो मर जाएगा या फिर वो यूट्रस में पहुंचने के बाद में मर जाएगा। ये केस था कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो वो 24 से 48 घंटे के बीच में ओवम या तो ट्यूब में ही मर जाएगा या फिर वो यूट्रस में जाके मर जाएगा। बट इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम क्या बना देता है, जाइगोट का डेवलपमेंट करवा देता है, एंड इज स्वेप्ट इनटू यूटरस। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है जाइगोट का, जाइगोट जो बना कहाँ पे हुआ, ये यूटरस में जाके होता है, एंड इट टेक्स अबाउट 4 to 5 days। सो इट was all about the fallopian tubes। यूटरस, तो यूटरस इज द साइट वेयर द implantation takes place and it is also known as womb। Uterus shaped like an upside down pear, about 3 inches long and 2 inches wide by 1 inch deep, superior to the urinary bladder and between the two ovaries in the pelvic cavity। तो इसने क्या बताया, इसने ये लेंथ बताई कि कितनी लेंथ होती है यूटरस की, और इसकी जो लोकेशन होती है वो सुपीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर होती है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की तरफ यूटरस की लोकेशन होती है, और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन टू ओवरीज। Next point is during pregnancy the uterus increases greatly in size, contains the placenta to nourish the embryo fetus and expels the baby at the end of gestation। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, यूटरस का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ये प्लेसेंटा को कंटेन करता है, और प्लेसेंटा किस चीज़ में हेल्प करता है, फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए प्लेसेंटा की हेल्प चाहिए होती है, या फिर हम कहें तो प्लेसेंटा एक वो कॉर्ड होती है जिसकी हेल्प से जितना भी जो खाना होता है, जितना भी नरिशमेंट है वो मदर से होते हुए वो फीटस तक पहुंचता है, एंड एक्सपेल्स द बेबी एट द एंड ऑफ गेस्टेशन। और यूटरस से फिर बेबी एक्सपेल हो जाता है एट द एंड ऑफ गेस्टेशन, जब प्रेगनेंसी का टाइम पूरा ओवर हो गया आफ्टर 9 months, तो बेबी जो है वो एक्सपेल हो जाता है फ्रॉम द यूटरस। Next point is the parts and the layers of the uterus। I have already discussed the parts and the layers of a uterus। Again, the upper portion of uterus is known as fundus। Center portion of uterus is known as body। The narrow or the lower end of the uterus is cervix, which open into the vagina। The opening of uterus and cervix is vagina। Next are the layers of uterus। Again, the outer layer is known as perimetrium, middle layer is myometrium, and the outer layer is known as endometrium। So it is about the uterus। Next, vagina। So vagina is
the opening of the uterus and the cervix. So what is the role of vagina? Vagina, basically it is responsible to carry the sperm or to receive the sperm uh, during sexual intercourse. So the first point of vagina is a muscular tube about 4 inches or 10 centimeter long that extends from the cervix to the vaginal orifice in perineum. तो वेजाइना की लेंथ जो होती है वो 10 सेंटीमीटर इन लॉन्ग होती है, एक्सटेंड होती है फ्रॉम सर्विक्स टू द वेजाइनल orifice. Next is the function of vagina is to receive sperms from the penis during sexual intercourse, and it also provide exit for menstrual blood flow and to become the birth canal at the end of प्रेगनेंसी. तो जो बर्थ कैनाल होती है फीटस की वो वेजाइना के थ्रू ही होती है. नेक्स्ट इज द वेजाइनल म्यूकोसा आफ्टर प्यूबर्टी इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम which is relatively resistant to pathogens. तो एट प्यूबर्टी क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं वेजाइना में और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं पैथोजेंस के. दी नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना क्रिएट्स एंड, तो ये जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है पैथोजेंस से ये कैसे प्रिवेंट हो सकता है, तो वेजाइना एक एसिडिक इन्वायरमेंट कॉज करके रखता है जिसकी वजह से अगर ग्रोथ होती है किसी भी पैथोजन की वो इनहिबिट हो जाती है. तो वही चीज़ इसने यहाँ पे बताई है कि दी नॉर्मल फ्लोरा ऑफ दी वेजाइना creates an acidic pH that helps to inhibit the growth of the pathogens. So it is about the vagina. Next is external genitals. External genital, it is also the part of the female reproductive system. So I have made the handwritten structure also to make you clear easily, but before that we will discuss this structure. So female external genital may also be called vulva. So जो external genital होता है फीमेल का उसको vulva भी बोलते हैं, and include the clitoris, labia majora, labia minora एंड बार्थोलिन ग्लैंड. तो ये इसने पार्ट्स बताए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सटर्नल जेनिटल्स में. इन पार्ट्स को अगर आप यहाँ पे भी देखोगे स्ट्रक्चर में तो इजीली क्लियर हो रहा है कि लेबियम मेजर, लेबियम माइनर, मोनस प्यूबिस, ये वो एरिया होता है जहाँ पे कि हेयर का डेवलपमेंट रहता है. क्लाइटोरिस अपर पोर्शन होता है ऑफ द वेस्टिब्यूल, urethral opening, vaginal opening, hymen is very thin layer of the vaginal opening and the anus. So these are the external organs. If so, it is the structure where I have made the handwritten to make you clear easily. So one by one we will discuss. First point, it is talking about the vestibule. Vestibule, it is the inner part of the vulva. तो जो ये inner part होता है इसको क्या नाम दिया गया, वेस्टिब्यूल इसको बोला गया. अब वेस्टिब्यूल में भी दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं. जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं हम यूरेथ्रल ओपनिंग. यूरेथ्रल क्योंकि ये यूरेथ्रा से कनेक्ट है तो इसको यूरेथ्रल ओपनिंग बोल दिया. और जो लोअर ओपनिंग होती है उसको वेजाइनल ओपनिंग बोला गया. तो थर्ड पॉइंट इज वेजाइनल ओपनिंग. नेक्स्ट फिर इसने बताया कि वेजाइनल ओपनिंग से ही अटैच हाइमेन प्रेजेंट होता है. हाइमेन इज a thin layer and this layer is responsible, or we can say it is the indication of virgin female.
नेक्स्ट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस वेस्टिब्यूल के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है टिप पे बिल्कुल, तो ये क्लाइटोरिस होता है जो कि एरेक्टाइल टिश्यूज से मिलके बना होता है। अब ये था पूरा कि वेस्टिब्यूल जो है, वेस्टिब्यूल के कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब वेस्टिब्यूल की भी एक आउटर कवरिंग होती है पूरी, और इसके बीच का जो स्पेस हुआ वेस्टिब्यूल के बीच का और लेबिया मेजोरा के बीच का जो ये अंदर वाला स्पेस बचता है, इसको नाम दिया गया लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा मीन्स इंटरनल एरिया और द इंटरनल स्पेस of the vulva is known as labia minora। और जो आउटर जो स्पेस बचता है, या फिर हम कहें कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वुल्वा की, उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे कि लाइक स्क्रोटम। तो लाइक स्क्रोटम का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे स्क्रोटम का वर्क होता है वहाँ पे, लाइकवाइज लेबिया मेजोरा का वर्क भी सेम स्क्रोटम के जैसा होता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट 8 पॉइंट इसने यहाँ पे बताया बार्थोलिन ग्लैंड, और इसको हम बल्बोवेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बल्बोवेस्टिब्यूलर क्योंकि ये वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट है, इसलिए इसको नाम दिया गया बल्बोवेस्टिब्यूलर ग्लैंड। तो ये ग्लैंड क्या है? ये ग्लैंड वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो दीज आर 2 इन नंबर। और ये ग्लैंड जो है ये ल्यूब्रिकेशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इसने बताया ये आउटर लेयर जो है लेबिया मेजोरा का जो ये एरिया है, यहाँ पे हेयर डेवलपमेंट रहता है, और इनको क्या बोला जाता है? इनको प्यूबिक हेयर बोला जाता है। और जो एरिया है जहाँ पे कि एयर डेवलपमेंट रहता है, उसको हम मोनस हेयर भी बोलते हैं। तो ये एक डायग्राम है, बिल्कुल इजीली इसमें 1 by 1 जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आई मेड दिस डायग्राम। So it is the external genitals of the female। नेक्स्ट इसने यहाँ पे पार्ट्स के बारे में बताया, मैं आपको बता चुकी हूँ ये कि क्लाइटोरिस क्या होता है। ये एक स्मॉल मास होता है इरेक्टाइल टिश्यूज का, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है टू द यूरेथ्रल ओरिफिस पे। द ओनली फंक्शन ऑफ द क्लाइटोरिस इज सेंसरी। तो जितना भी सेंस करने का फंक्शन होता है, जो कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम रिस्पॉन्स होता है, वो क्लाइटोरिस का होता है। नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा, जिसको हम ग्रेटर लिप्स भी बोलते हैं। ये दीज आर दी पार्ट अराउंड द वेजाइना containing 2 glands, Bartholin glands. That secretion of these glands keep the mucosa moist and lubricates the vagina during sexual intercourse। तो जैसे अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि बार्थोलिन ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, एक तो ये मॉइस्चर प्रोवाइड करा के रखते हैं, और दूसरा ये ल्यूब्रिकेट करवाते हैं वेजाइना को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। Next is labia minora। Labia minora are the thin hairless ridges at the entrance of the vagina। तो जो एंट्रेंस होती है वेजाइना की, उस पोर्शन को लेबिया माइनोरा या फिर लेसर लिप्स भी बोला जाता है, which joins behind and in front। So it is all about the external genital of female। Next and the last topic of this video is female reproductive system, functions of female reproductive system। As I already discussed each and every point, but in this table ये और इजी हो जाएगा आपको समझना, क्योंकि इसमें 1 by 1 सारे फंक्शंस बताए हैं। तो ओवरी, मैंने जैसे कई बार रिपीट किया कि ओवरी का फंक्शन क्या रहता है, ये एग को प्रोड्यूस करवाने का रहता है, और ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करवाते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये एग को कैच करता है फ्रॉम दी ओवरी और उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है यूट्रस तक फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद में। नेक्स्ट इज यूटरस। तो यूटरस इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ये होल्ड करके रखता है एम्ब्रियो को, ताकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छे से हो सके, और इसकी जो लाइनिंग्स होती हैं, 3 लाइनिंग्स होती हैं, वो भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती हैं। तो एंडोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट लेयर थी एंडोमेट्रियम, ये ब्लड से एनरिच्ड रहती है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है एम्ब्रियो को फ्रॉम दी प्लेसेंटा। और ये यूट्रस जो है ये किस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? प्लेसेंटा
को बनाने के लिए भी। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस के थ्रू ही होता है। लास्ट इज वेजाइना। तो वेजाइना जैसे कि बताया था कि क्या होता है, ये ओपनिंग होती है यूट्रस की और सर्विक्स की ओपनिंग को वेजाइना बोला जाता है। सेकंड इसमें हमने बात की थी कि वेजाइना ही क्या करता है कि पेनिस से स्पर्म को कैच करने का काम, या फिर इट इज़ द एंट्री ऑफ स्पर्म, वो वेजाइना ही करता है। और ये क्या करता है, एग्जिट ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जो होता है वो भी वेजाइना के थ्रू ही होता है। तो दीज आर दी फंक्शंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वेजाइना। सो इट वाज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।